Hello, ladies and gentlemen, and welcome back to yet another interesting talk that we are having today. And this is with none other than my very dear friend Ruchit Mehta. Hi, Ruchit, how are you? I'm good. Thank you so much for having me here. Hi, Ruchit, it's always a pleasure. Ruchit, I request you to please introduce yourself and introduce everything that you have done. Sure. So, hello everyone. My name is Ruchit Mehta, and I have completed my post graduation in media entertainment from Welling Institute currently. So, I have started my own firm called The Redesign. It's a creative agency. So, we work as a graphic designer for you, video and photography production, and as well as the website development. Uh, Part time, I'm also a freelancer, dance choreographer, संगीत है, स्कूल एनुअल फंक्शंस उसमें भी मैं कोरियोग्राफी करता हूँ. मुझे एक्टिंग भी पसंद है एंड हाँ मुझे रील्स बनानी भी पसंद है. सो मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत काफ़ी एक्टिव हूँ, डांसिंग रील्स और वो सब. एंड माय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नेम इज धूमकेतु. धूमकेतु. या सो दैट्स इट फ्रॉम. धूमकेतु का मतलब क्या होता है? धूमकेतु इज अ कॉमेट. मतलब कॉमेट जहाँ भी गिरता है तो दैट क्रिएट्स अ धमाका होता है. क्या बात. Lovely. How old are you? I'm 24. I'm 24. तो शर्मा क्यों रहे हो? शादी का बात थोड़ी चालू है. So, Rajit, I'm see, there are very few people जिनकी जर्नी ने मुझे इंस्पायर किया है, and Ruchit is definitely one of them. He had lot of struggle, and I like to say this struggle was mental, apart from anything, and definitely he has sailed through. He is fighting every day within himself, and today I wanted to talk about it. Ruchit, let's run through your journey until now, with all the things that have happened, because at 24 there will be many people who would be petrified with the thought of starting their own business, and this is your second go at your business, and I request you only to run us through your story. Okay, so basically I was average, मतलब average kind of a student academically. Right. कि मुझे इतने भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और पहले से ही I was a child that can't sit at a one place. मतलब इतना घंटा पढ़ाई करो, ये करो, एक धूमकेतु जगह पे. basically. वो बचपन से होता धूमकेतु. था. Yes. So I did my like for second year तक I was in Dombivli. My family was staying in the Dombivli. तो वो स्टेट बोर्ड था. And then we migrated to घाटकोपर, and वहाँ पे of course सबके पेरेंट्स इच्छा थे कि बड़े स्कूल में जाए. वैसे तो they got admission in an international school, but I was not able to cope up with that studies. हाँ, it was a drastic sudden change. मतलब मेरा इधर प्राइमरी हो गया था, डायरेक्ट सेकेंडरी में इंटरनेशनल कर दिया, स्टेट और इंटरनेशनल. Just to give perspective, Dombivli is at the fag end of MMR, not only Mumbai, and वहाँ से आप proper Bombay में आ गए. Proper Bombay में आ. So there is not only a proper change but a cultural change as well. 100%, because वहाँ पे प्री स्कूल भी अलग और मुंबई का प्री स्कूल भी बहुत अलग है. The way of education. तो कहीं ना कहीं inferiority complex या जो भी थोड़ा बहुत कि like मैं to be very frank मैं मेरे एज से एक साल जल्दी पढ़ाई कर रहा था. So मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ everybody is a year older to me. तो वो भी एक आ जाता है. Plus coming from a area like डोंबिवली तो यहाँ पे तो लोगों का माइंडसेट भी काफी डिफरेंट होता है. एंड स्टेट बोर्ड एंड इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स में भी काफी फर्क होता है कि द बैकग्राउंड दे कम डाउन, द बैकग्राउंड दैट आई हैव बीन कमिंग अप. जो फ्रेंड्स मेरे उधर थे यहाँ पे तो वो काफी कुछ था. तो कल्चरल शॉक था. मतलब वो जो हिसाब से सोच रहे हो हिसाब से मैं थर्ड में एडमिशन लिया था. बचपन में ही सदमा. हाँ, बचपन में ही सदमा लग गया. सो लाइक बोलते हैं कि माय नॉर्मली लोगों का स्कूलिंग 10 years of schooling is amazing. मतलब मेरा काफी उल्टा था. सो आई कैन से माय 5 years of college like higher school and then graduation के जो 5-6 years थे that were quite good. So schooling में then पढ़ाई में थोड़ा issue हो रहा था कि I was not getting into that thing or something. You weren't able to cope up basically. या cope up नहीं हो रहा था. So I thought कि मतलब मैं state board में पहले से पढ़ा होता तो I might be a person who got coming up on the rank और उसमें self doubt होने लगा आपको. हाँ, self doubt होने लगा कि यार मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ ये जा रहे हैं. So
rather than listening to myself, I started listening to the people. कि Okay. अच्छा वो कर रहा है तो मुझे वो करना चाहिए. तभी से ही चालू हो गया था कि यार क्लास में पढ़ाई वाले और अच्छे लोगों को ज्यादा भाव मिलता है हाँ एंड हमारे जैसे लोगोों को कम भाव मिलता है. इन रिस्पेक्ट टू फ्रेंड्स है, टीचर्स है, वो बहुत कुछ है जो तभी वी वर फेसिंग. लाइक एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स यू ऑलवेज टेल कि हाँ अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे कल्चर के अराउंड पढ़े, बट दैट 8 hours स्कूल में हमें बेयर करना है. तो वो टॉर्चर लगता है. हाँ स्टार्टिंग में जेन्युइनली बहुत टॉर्चर लग रहा था कि कैसे तारे जमीन पर वाली स्टोरी हो सकती है क्या? नहीं इतना भी नहीं इतना भी नहीं, बट आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट ड्यूरिंग माय स्कूल इयर्स. मतलब आज मैं इतना बोल रहा हूँ, ये सब शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं 10 साल पहले देखूँ तो दिस वाज नॉट पॉसिबल. इतना Also, the बोलना reason why I'm emphasizing on this is because अब काफी यूथ ये मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं. अब भले छोटे थे बट दे aren't able to fit in. बट हमें ये समझना है कि फिट इन जरूरी भी नहीं है. Yeah, it is not necessary. मतलब जो चीज नहीं जम रही है, बट हाँ उसका वो चीज करना जरूरी है. मैं स्कूल छोड़ तो नहीं दूंगा. हाँ एग्जैक्टली, बट ठीक है. बट उसका ऑल्टरनेटिव आप कैसे सोच सकते हो कि आप अगर 8 घंटा स्ट्रेस हो रहा है तो वेयर यू कैन कम डाउन कि हाँ थोड़ा अपने माइंड को भी रिलैक्स करो. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट. अभी एक फैक्ट वो भी है कि मैं 3rd से लेके 6th तक 3 साल मैं फेल ही हुआ हूँ. वो तो रूल था कि 8 तक किसको पास फेल नहीं करना है. हाँ. वो हिसाब से नहीं, अभी तक मैं 3rd में ही होता. अभी आप हंस के बता रहे हो, अभी पता नहीं. तभी तो लाइक उस चक्कर में मैंने झूठ बोलना चालू कर दिया था. अच्छा. So I never lied before, Right, but right. वो पेरेंट्स के फेस में वो खुशी देखना तभी समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स मीटिंग होने वाले हैं. Right, right. तभी तो वो दिन पास आउट करना था. सो Right. अगर 20 में से मुझे 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, I used to make it 15 16. अच्छा क्या बात है. हाँ तो वो सब तभी करे. और मेरी सिस्टर भी साथ में, तो मैं दोनों मिलके नहीं, मेरी सिस्टर इज लाइक जो है वो इफ यू हैव फेल तो यू टेल इट टू द पेरेंट्स यू हैव फेल कि ऐसा है. बट मैं वो टाइम बचपन से एम्बिशियस थे. सो अभी मार्क्स मालूम पड़ गए, ये हो गया. अभी इट्स लाइक टुमारो इज अ पेरेंट्स टीचर मीट. सो अभी मैं पूरा टेंशन में हूँ. हाँ, कल सच मार्क्स मिलने वाले हैं, पोल खुलने वाली है. पूरा वो ना. सो वो एक दिन पहले जो एंजाइटी होती है दैट इज लाइक मैं रो दूं. आई हैव क्राइड इन स्कूल इन माय सिस्टर्स क्लास में जाके, क्योंकि उसको सच बोल रहा हूँ कि ये अब रोए अपने वजह से ना, झूठ. हाँ मतलब ऑफ कोर्स वो अब ही लोग कम कैमरा नहीं ले सकते हैं. सो वो सब भी दिन थे लाइक एंड मतलब वो फिर इट वाज अ स्टेज की नाउ 7th 8th 9th 10th 4 years आर मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं. सो स्कूल मैनेजमेंट टोल कि 1 साल रिपीट कराओ या यू फाइंड आउट अ स्कूल, न्यू स्कूल. My parents took a call कि नहीं, मतलब नहीं जम रहा है तो फिर there is no sense of making him 1 साल वापस कराओ एंड समथिंग. 1 साल में क्या इतना ही वो चेंज हो जाएगा क्या, उसको जमेगा, इतने साल नहीं जमेगा. At the time when you were thinking, your family was thinking to change your school. Yeah, so we took a decision that we will change. My sister continued in that school when she passed 10. तो आप इंटरनेशनल स्कूल से स्टेट बोर्ड में आ गए. स्टेट बोर्ड में आ गया. सो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस थे मुझे, जो घाटकों पर स्पेसिफिक एरियाज में जो बिग स्कूल्स है जहाँ पे स्टेट बोर्ड में भी अच्छे नाम के स्कूल्स है, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था एडमिशन मिलने में. अच्छा. बिकॉज इंटरनेशनल में हिंदी कंपलसरी था, बट अनदर सब्जेक्ट मराठी कंपलसरी नहीं, मराठी नहीं था, मुझे फ्रेंच था. अच्छा अच्छा. और स्टेट बोर्ड में मराठी, गुजराती और हिंदी तीनों लैंग्वेज थे. सो हिंदी गुजराती ऑप्शनल हो जाता था पर मराठी कंपलसरी होता था. तो उस चक्कर में काफी स्कूल आपको मना कर दे कि उन्होंने 7th 8th स्टैंडर्ड से अब रिजेक्शन झेल रहा है. रिजेक्शन में 7th स्टैंडर्ड से 6th में मैंने सॉरी सो तभी से लाइक नहीं कोप अप नहीं होगा. 7th इज बेस फॉर योर 10th. कितनी स्कूल ने रिजेक्ट किया रहेगा आपको? 4 स्कूल तो मुझे ही मालूम. 4 स्कूल याद है, 5 स्कूल. इसलिए मुझे अभी जॉब रिजेक्शन भी होता है तो मेरे को स्कूल में बचपन से झेल रहा हूँ. तो फिर वो हुआ. तो फिर फाइनली एक स्कूल था, सो गुरुकुल स्कूल था. उसमें my parents have studied in that school. So वहाँ पे the best thing was कि मराठी तो था, सो मराठी मुझे पढ़ना ही था 7 से. सो हिंदी गुजराती में ऑप्शनल था. सो
2 लैंग्वेज नहीं पढ़नी थी, एक ही लैंग्वेज नहीं पढ़नी थी. सो Right. मैंने वहाँ पे गुरुकुल में एडमिशन. सो बेसिकली I was studying in a classroom with 2 ACs and 25 students with single bench and a chair. I came down to a state board where we were studying in a fan and proper एक common bench में 3 जन बैठ रहे थे. So तभी मुझे इतना वो नहीं हुआ कि फॉर मी इट वाज कि नई स्कूल है, नए फ्रेंड्स, ये सब. बट माय पेरेंट्स वो क्वाइट लो कि मतलब वो कैसे करेगा इतने साल तक इंटरनेशनल. स्कूल भी थोड़ा लाइक ओके हाँ, वाज नॉट दैट ग्रेट. क्राउड भी थोड़ा मतलब ये कंपैरिजन में काफी वो था. सो फर्स्ट डे माय मॉम केम टू पिक मी अप एंड शी वाज क्राइंग. चिल, इट्स ओके. उधर आप रो रहे थे आपके मम्मी का. डू आई थिंक मैं नहीं रोया. यहाँ पे you would be enjoying. यहाँ पे लाइक पहला 1-2 घंटा थोड़ा ऑड लगा कि कैसा है ये वो. बट देन 1-2 जन ने बात किया. आई वाज क्वाइट सेटल्ड. लाइक आई कैन से आई मेड 2 फ्रेंड्स इन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल. Unlike हाँ, उधर मुझे काफी टाइम लगा टू डाइजेस्ट क्योंकि बहुत सारी चीजें थी. एंड सो बचपन से ही माय मेडिकल इश्यूज आर बीन we'll come to that. बहुत इश्यूज मुझे पहले से है. सो आई मुझे कफ एंड कोल्ड का बहुत इशू है. सो बचपन से ही ब्रेन फीवर के इंजेक्शंस लिए. मुझे फीवर सिर पे चढ़ जाता था, ब्रेन पे. तो आई नीड टू हॉस्पिटलाइज होना. बचपन में तो क्या उम्र से? आई कैन से बॉर्न से ही मुझे ये प्रॉब्लम है. कफ मुझे बैठ जाता है, टॉन्सिल्स, ये सब बहुत प्रॉब्लम है. मैंने नेबुलाइजर आई थिंक बचपन से ही मुझे नेबुलाइजर और वो सब का क्या होता है? नेबुलाइज बेसिकली कफ छाती में भर जाता है तो उसे अगर बहुत जम जाता है तो नेबुलाइजर से उसे स्प्रेड आउट करके वैसे. तो उसके लिए नेबुलाइजर घर पे रखना पड़ता था क्योंकि जब भी एक सीजन चेंज हो रही है दूसरा आ रहा है तो बिटवीन दैट जो पीरियड होता है जहाँ पे 2 सीजन चेंज हो रही है. सो दिस इश्यूज कम अभी भी, बट पहले से कंपैरेटिवली इतना कम है. सो पहले से इतनी मेडिसिन ये वो. एंड 8th के आई थिंक 8th स्टार्ट और मिड में मुझे कफिंग चालू हुआ. सो बेसिकली दैट वाज नॉट अ ऑर्डिनरी कफिंग. सो इफ आई कफ सो माय मेरा आवाज इज लाइक 2 फ्लोर्स पूरा सुनेगा, इतना बड़ा कफिंग हो रहा है. रेगुलरली होता था. हाँ, रेगुलरली. सो आई कैन से ड्राई कफ बट द वॉल्यूम ऑफ दैट कफ वाज क्वाइट बिग. सो उसकी वजह से मुझे स्कूल में अलाउड नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं वो कफ एक बार चालू होता है तो 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यूअसली मैं कफ करता हूँ. सो माय चेस्ट स्टार्ट पेन होने लगता है एंड एवरीथिंग. तो उसकी वजह से मैं 2.5 साल स्कूल नहीं गया. अच्छा, स्कूल मिलने के बाद भी? हाँ, स्कूल मिलने के बाद भी मैं स्कूल नहीं गया. 2.5 साल तक ब्रेक्स में बिकॉज स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब होता था. फिर एग्जाम के लिए भी मुझे एक अलग सेल में अकेले बिठाते थे. एक ऑफिस वो यूज्ड टू सीट वो मुझे देखता था एंड मैं एग्जाम भी अकेले लिखता था. तो कॉपी भी नहीं कर सकते? कॉपी मैं पहले से मेरी फटती है कॉपी. हम मार्क्स ही चेंज कर देते हैं. मतलब कम मार्क्स आया फिर कॉपी नहीं करना. ठीक है. ऐसे तो मैं कॉपी का तो पहले से. तो उस बीच में फिर अपेंडिक्स और ये सब इश्यूज क्रिएट होना. सो स्कूल में काफ़ी आई थिंक पढ़ाई का हैम्पर मेडिकल इश्यूज की वजह से भी होता था कि कैसे है ये. फिर ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं मिलता था. रिस्ट्रिक्शन. आपने थेरेपी भी दी थी? हाँ, खांसी को लेके मेरा साइकोलॉजिकल थेरेपी भी स्टार्ट होता. तो स्टार्टिंग में तो सीटी स्कैन, एमआरआई सब टेस्ट करवाया. उसमें कुछ ना कुछ छोटा छोटा आ गया तो उसका मैंने आई टेकन लॉट ऑफ स्टीरॉइड. मतलब छोटी एज में पंप भी लिए है, स्टीरॉइड बड़ी बड़ी दवाएं भी ली है, ये सब भी किया है. फिर लास्ट में साइड इफेक्ट हुआ था? हाँ, माय बॉडी as in your weight. या माय वेट. माय बचपन में आई वाज वेरी थिन. तो अगर मैं बोलूँ ना माय हाई जो बीएमएस बोलते हैं वो मेरा ठीक था. बट बिकॉज ऑफ जॉन्डिस के बाद मुझे जॉन्डिस, चिकन पॉक्स, सब कुछ हो चुका है. मेरी मतलब हर दवाई मुझे पहचानती है. सो वो चीज़ की वजह से मेरा बॉडी पुट ऑन होने लगा. स्टेरॉइड्स की वजह से भूख ज़्यादा लगती है तो वो होने लगा. सो द बिगेस्ट साइड इफेक्ट दैट आई एम करंटली बेयरिंग इज माई बॉडी. सो बॉडी के वजह से ये सब चालू हुआ. एंड द मेन रिलीफ दैट
ये सब के बीच में देता था, which was dance. And dance have been quite together with me पहले से, मतलब कहाँ से सीखा नहीं है, बट एक ही आइडल है ऋतिक रोशन को देख के मैं डांस करता था, यूट्यूब और ये सब में सॉन्ग्स आते थे। आपका और उसका बर्थडे भी एक ही दिन पे है ना? मेरा और उसका बर्थडे भी वो एक ही, अच्छी बात है। सो स्कूलिंग ऐसे कंप्लीट हुआ। अभी 10th में भी पहले 6 महीने आई वाज गोइंग थ्रू द कफ, सो वो भी थोड़ा हैम्पर हुआ। सो माय पेरेंट्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक परसेंटेज और समथिंग, बट देन आई पास आउट विद अ गुड ग्रेड। खुश हो गए? हाँ, खुश हो गए थे। आई थिंक आई विल गेट हुए। हाँ, बट जो एक देन दिस इज हाउ माय स्कूलिंग वाज 10 years। लाइक मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाया स्कूल, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आई थिंक दैट शिफ्ट के मतलब मैंने 10 साल में कम से कम 3 स्कूल तो मैंने बदली है, एंड बहुत स्ट्रेस के मारे वाले। हाँ, एंड कभी कभी आई थिंक ऑल दिस थिंग्स हैव क्रिएटेड कि एक मुझे सेल्फ डाउट बहुत होने लगा कि आज फैमिली में गेट टुगेदर होता है, कुछ होता है, तो पीपल टॉक अबाउट देयर चिल्ड्रन कि यार शी अचीव्ड दिस, उसको ये आया। माय पेरेंट्स वर नॉट एबल टू is doing good or something, that somewhere that hits you। हमेशा एक inferiority हाँ, वो अलग से ही बैठते हैं। लेमलाइट में आना ही नहीं मुझे। ये लेमलाइट में आएंगे, किसी को दिख जाएंगे तो पूछेंगे कि पढ़ाई कैसे चल रहा है, क्या स्कोर आया है सर। लेमलाइट में आए ही नहीं तो फिर क्यों पूछना। सो बहुत बार तो फैमिली फंक्शंस भी इग्नोर किए ऐसे कि नहीं जाना है, क्यों बहुत सवाल पूछते हैं। हाँ, पेरेंट्स के दिखेंगे तो दैट विल बी शिफ्टेड। सो दैट वाज समथिंग, बट बोलते हैं ना कि हर चीज का देयर इज एन सोल्यूशन इन योरसेल्फ। राइट। सो 10th खत्म हुआ। 10th में भी जो कॉलेज मुझे चाहिए था वो तो मिला नहीं बिकॉज ऑफ द ग्रेड। सो वापस मुझे गुरुकुल में ही स्कूल, उनका कॉलेज भी है, राइट, वहाँ पे ही करना 11th और 12th आपको 11th and 12th। So I was very clear कि मुझे I don't want to go with any donation। मुझे डोनेशन लेके कोई कॉलेज में नहीं जाना है। हम अपने बलबूते पे जाएंगे। हाँ, so that it is fine कि ये कॉलेज। So but I made a thing that I will change in 12th। मैं 11th में, अच्छा नॉर्मली स्टूडेंट्स का यही कॉन्सेप्ट होता है कि यार 10th हुआ है, 11th में विल बी 11 12 11 चिल मारेंगे एंड 12th में वापस बोर्ड के लिए था मेहनत करेंगे। सो दिस वाज मतलब एडमिशन हो गया था गुरुकुल में एंड द कॉलेज वाज लाइक गोइंग टू स्टार्ट इन अ वीक और समथिंग। सो घर पे अकेला था एंड आई जस्ट सैट ऐसे सब टीवी और वो सब बंद करके एंड आई स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट आई हैव डन or what I've lose in last 10 years of my life। So there was many things that I've lose। मतलब बहुत कुछ मैंने खोया है। Like मैं बोलूँ तो मैंने स्कूल की मस्तियाँ बहुत खोई है, क्योंकि मैं स्कूल 2.5-3 साल तो मैं स्कूल ही नहीं गया मेडिकल की वजह से। फिर what all things मेरे हाथ में था और मैंने नहीं किया। तो पेरेंट्स का ट्रस्ट, आई थिंक झूठ बोल के एक डाउट आ जाता है कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था कि कैसे मैं कर सकता। तो स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं ना, काइंड ऑफ दैट आई वाज डूइंग आउट इन योर 11th स्टैंडर्ड। हाँ, मतलब बस एक हफ्ते में चालू होने वाला था एंड आई डिड इट। देन आई थॉट मैच्योरिटी किक्ड इन, वैसे हो गया। हाँ, अचानक से, मालूम नहीं कैसे, बट हो गया। सो फिर मैंने सोचा कि अभी जो हो गया है वो हो गया। अभी how to take it at it's like college एक नई लाइफ होती है। like college is totally different। आप स्कूल में कंफर्ट जोन होता है कि आप एक ही जगह पे हो, ये हो, टीचर है, सब स्पून फीड करेंगे। कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। so you meet an open crowd, mixed crowd, टीचर्स नए, सिलेबस नया, उसके बेसिस पे आपको आगे का फ्यूचर आपको सोचना है कि आपको कैसा है। so there is lot of things that goes in your mind। सो आई थॉट कि यार अभी तक तो पेरेंट्स है, ट्यूशन टीचर्स, काफ़ी लोगों ने धक्का मार के मुझे आगे बढ़ाया, बट इफ आई नीड टू चेंज माय माइंडसेट। अगर मैं खुद को ही ऐसे बेचारा या वैसे करते रहूँगा तो वो नहीं होगा। सो आई थॉट कि लेट्स डू इट। कि ये बार 11th में स्पेशली व्हाट आई थॉट कि मैं क्लासेस नहीं करूँगा। जो अकाउंट्स या उसको बेसिक, मैंने कॉमर्स लिया था तो अकाउंट्स का वो जो क्लासेस लगाना था वो मैंने बेसिक अकाउंट्स सीखो के क्लासेस लगाए थे। दूसरा आई थॉट कि आई विल डू अ सेल्फ स्टडी।
So I think that worked. वो किया then So basically आपने पहली बार खुद के लिए एक खुद decision के लिए लिया। कुछ डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है। And it helped you. It helped me कि मुझे कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है। अभी कॉलेज है तो नए लोग होंगे तो उनके साथ कैसे मिक्सअप होना है। जो इंट्रोवर्ट था उसको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट करना आपने बहुत खुद को ही जरूरी धक्का था। मारा। हाँ, खुद को ही धक्का मारना बहुत जरूरी था। अभी पहला तो आई लर्न के शॉर्ट टर्म गोल्स कंप्लीट करते हैं। एक विजन होता है, एक गोल होता है, तो गोल को कंप्लीट करेंगे तभी एक विजन अचीव होगा। So what's your next goal in हाँ, this case? so अभी तो I started my नहीं अभी नहीं 11th अच्छा में। 11th में my first goal was to go in a big college। अच्छा okay। हाँ, so I need to score well। करके 12th के बाद निकलना है यहाँ से। 11th के बाद। 11th के बाद। हाँ, मैंने 12th में कॉलेज चेंज किया। कल किसने देखा है 11th के बाद? So 11th में स्टडी किया फर्स्ट यूनिट मैं मेरे हिसाब से मैंने पढ़ाई की जो बेसिक 2 सब्जेक्ट्स के क्लासेस लगाए थे एंड आई थिंक आई वाज 6th रैंक्ड। हाँ, मुझे फर्स्ट यूनिट में 6th आया था मैं पूरे क्लास में। सो वो एक सो वो बिलीव नहीं हुआ क्योंकि सब सब्जेक्ट्स में लाइक अराउंड 20 में से स्टार्टेड विद 16 आने 17 आने रियल में। तो घर पे भी बोलता था तो झूठ नहीं बोल रहा ना, बोल दे जो भी गलत है तो गलत है। तो वो पेरेंट्स को भी डाउट आता है। बोला कि नहीं आई एम स्कोरिंग इसमें। सो देन वो आई थिंक फर्स्ट यूनिट वाज अ वेरी बिग किक टू माय सेल्फ कि मैं मेरे पास खुद के सॉल्यूशंस है। So confidence थोड़ा बिल्डअप होने लगा फर्स्ट यूनिट में। फिर वैसे ही फ्रेंड्स के साथ एक बार आप क्या खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना तो आप लोगों से इंटरेक्शन अलग वे से करना चालू कर देते हो। फिर आप बैठे नहीं रहते हो। आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। हाँ, मैं सामने से लोगों को मिलने लगा, फ्रेंड्स बनने लगे, टीचर्स भी काफी फ्रेंडली होने लगे। सो डिसिप्लिन स्क्वाड का हेड बना, ये वो 11th में काफी कुछ एंड आई वाज स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइफ तभी दैट ईयर। एंड फिर फाइनल एंड आई स्कोर अराउंड आई थिंक 78-79% मुझे 11th में आए एंड आई स्टार्टेड हंटिंग वापस कॉलेज के लिए जो गोल था। एंड मैं इधर से निकल हाँ, कॉलेज अच्छा था बट एक्चुअली ये कॉलेज में यूनिफॉर्म और वो सब पहनना था। एंड जो कॉलेज में मतलब हम लोग हमारे कपड़े पहने गए थे और घाटकोपर में नॉर्मली लोग रहते तो सोमया का एक क्रेज होता है। हाँ। So, मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो फाइनली मुझे इसमें भी लास्ट लिस्ट में लगा बट मुझे आर्ट्स एंड कॉमर्स सोमया में एडमिशन मिल गया 12th में। सो अभी भी वैकेशन चल रहा था एंड लिस्ट लगा एंड लाइक दैट वाज अ हैप्पी मोमेंट कि आज मैं खुश हो सकता था अगर डोनेशन देके भी मैंने एडमिशन पहले लिया होता बट जो एक्साइटमेंट तभी का था बिकॉज वो मैंने डोनेशन दे के किया है विच वाज समथिंग मेरे लिए कि मैंने वो पोजीशन मैंने फोर्सफुली अचीव की है और यहाँ पे मैंने अर्न किया है। तो वो जो दो खुशी का बहुत बड़ा डिफरेंस है एंड आई वांटेड दिस वाला खुशी कि मैंने अर्न किया है। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि नहीं मैं परसेंटेज लाया मुझे मेरिट पे मिला है। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब पहला दिन मतलब मैं जितना ये कॉलेज में पहले दिन के लिए एक्साइटेड नहीं था उतना मैं इसमें जाने का था। फिर यहाँ से मेरा को करिकुलर जर्नी स्टार्ट हुआ। सो एकेडमिकली फिर थोड़ा मोशन में था एंड आई वाज ग्रोइंग एकेडमिक वे में काफी अच्छे से। देन मुझे पहले से डांसिंग पसंद था। सो फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज था और डांस कल्चरल ग्रुप और वो सब कॉलेजेस में होता है। सो पहला दिन था आफ्टर कॉलेज आया था कि यू नीड टू गिव ऑडिशंस टू बी इन द टीम। ऑडिशन दिया, आई क्लियर्ड इट। मैं कॉलेज के डांस कमेटी में आई वाज द पार्ट। फिर कॉलेज के बाद रिहर्सल्स और वो सब चालू था एंड फिर फेस्ट चालू हो गए सब कॉलेज के। So I was in the so you were enjoying, you were in a happy space. I was very much happy. मतलब जो चाहिए था I think सब कुछ वो बॉक्स में बैठ रहा था बराबर। पोदार के फेस्ट में भी पार्ट हम लोग का फोटो आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में एंड लाइक आई वाज सीइंग दिस। ऐसे आपका ग्राफ ऊपर होना शुरू। हाँ, ग्राफ ऊपर होना चालू हुआ अपने बलबूते पे एंड माय पेरेंट्स वर क्वाइट हैप्पी कि चलो एंड सब कुछ डायरेक्शन मिल रहा है इसको।
एंड बस 12th खत्म हुआ, आई स्कोर्ड आई थिंक 10-12% हायर देन The 10th का score, Yeah. okay. Then I thought कि I'm good at management और ये करना है, so I picked up BMS marketing में. Right. Because I think 11th-12th was a year जहाँ पे मैं काफ़ी extrovert एक part तक हो चुका था, and I thought कि mind पहले से थोड़ा बहुत creative था, and I thought marketing will be a good stream कि जहाँ पे मुझे wider scope मिलेगा, काफ़ी कुछ करने मिलेगा. So yes, so उसके बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट होने लगा, एंड वन ऑफ माय कजिन वो लियो ऑर्गेनाइजेशन में था. सो पहले तो उसने बोला कि लियो क्लब ज्वाइन करते हैं. मैं बोला कुछ जिम खाना टाइप होगा कि स्पोर्ट्स खेलना होगा समथिंग. मैं बोला ठीक है ज्वाइन करते हैं. फादर से परमिशन लिया, फिर उसमें पार्ट हुए, और फिर मालूम पड़ा इज अ सोशल एनजीओ टाइप्स है जहाँ पे. सो बेसिकली इट इज अ यूथ विंग ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल. So Leo means leadership, experience and opportunity. So this is a youth club जहाँ पे I think 17 से लेके 30 एज तक के young crowd होता है. So apart from college आप इस संस्था हाँ ये इसमें join किया जहाँ पे मुझे like my talent got a good space. मुझे opportunity मिला. आपको एक platform मिला. मिला. So I explored my leadership. मतलब कभी इतने सालों में कभी वो नहीं किया था कुछ. सो वो करना मिला, क्लब का प्रेसिडेंट बना, एंड काफ़ी कुछ मज़ा आया. सो वो इम्पैक्ट मेरे ग्रेजुएशन ईयर्स में लगा. सो पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई में भी एक मैच्योरिटी आती है. मुझे लगता है कि आप लोगों से इंटरेक्शन करते हो, एंड दूसरा सब कुछ भी आप साइड बाय साइड करते हो ना, तो टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो वो भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है. और आपके थॉट प्रोसेस है, आप जब भी पेपर लिखते हो. अभी आज ग्रेजुएशन ऐसा फेस है जहाँ पे जो बुक में लिखा है वो पेपर में नहीं लिखना होता. इट्स टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे वो चीज़ को फ्रेम आउट करना विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. सो आई थिंक सो इस ऑर्गेनाइजेशन से आपको ये समझ आ गया हाँ कि I think my quality of answers also started enhanced. Okay. पढ़ाई भी easily मैं कर पा रहा था. I could understand it. So वो चीज़ें मेरे पढ़ाई में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, मेरे सोच पे भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना. So you grew as a person. हाँ 100%. So मैं अभी तक I will be 8th year मेरा स्टार्ट होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में. एंड बस फिर बोलते हैं ना कि एक 6-7 साल बहुत अच्छा ग्राफ आया. So I completed my graduation. This is your next challenge that you हाँ, so I think my college का phase was completed. My school phase was completed. My higher school and my graduation phase was completed where मेरा confidence भी lift up हुआ, काफी कुछ चीजें हुई. So during that phase I can say कि सिर्फ मेरे बूस्ट से नहीं, आई थिंक लॉट मेनी पीपल बूस्टेड मी. मतलब एक एलिमेंट होता है ना कि आपके लाइफ में कैसे पर वो जुड़ जाता है लाइक. सो बहुत सारे लोग थे, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल. We found many mentors over here. Very many और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स एज वेल एंड मेंटर्स एज वेल. सो वो काफ़ी चीज़ें थी. सो आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ 2019 में. आई स्कोर्ड out of 10 it was I think 9.07 CGPA. so वो भी खुश था कि I cleared with great. फिर now था कि MBA करना है, तो मैंने TY के साथ साथ नहीं पढ़ाई चालू किया था. so I wanted to focus on one thing, so I completed my graduation properly. फिर आया कि MBA करना है, तो एंट्रेंस के लिए मेरा मैथ्स पहले से बहुत वीक है. मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे नहीं मालूम मैथ्स में अल्फाबेट्स क्यों आता है, एक्स वाई क्यों आता है. क्यों अल्फाबेट्स को डालना, तो मुझे कुछ अभी भी समझता नहीं. सवाल अच्छा है. सो तभी also like कि मुझे ग्रेजुएशन के बेसिस पे प्लेसमेंट पे आई गॉट अ गुड, मुझे जॉब भी मिल गया था तभी कि गुड अच्छे कंपनी में. और मैं एडलैब्स इमेजिका में था. सो मुझे बिजनेस डेवलपमेंट B2B सेक्शन में मिला था, बिजनेस टू बिजनेस. बेसिकली सेल्स ही हो गया. हाँ सेल्स ही हो गया. नाम बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट, काम तो सेल्स ही हो गया. ग्रेजुएशन वाले को वही मिलता है. सो वो मिल गया था. सो फिर अभी फोकस करना था कि एंट्रेंस एग्जाम है सबकी, पढ़ाई करना, तो क्लासेस ज्वाइन की वो. बट काइंड ऑफ मेरे लाइफ में ना मुझे
किक मिले कोई चीज़ में ना तो मुझे करने को मज़ा आता है, बट समवेयर अराउंड ना मुझे वो जॉब में किक मिल रहा था ना MBA में किक मिल रहा था। सो जॉब के लिए आई हैड अ वर्ड विद माय फादर कि ऐसा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे जो करना है वो जो किक होना चाहिए वो नहीं है। आई थिंक 4 महीने के बाद आई क्विट द जॉब। फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, एंट्रेंस देना है ये वो, तो फिर थोड़ा टाइम पढ़ाई पे ध्यान दिया, बट मैथ्स एंड वो सब नहीं सेटल हो रहा था, दिमाग में नहीं बैठ रहा था, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। सो अभी आया है कि दिस इज द फेज वेयर अगेन मैं डिप्रेस हो चुका हूँ, You're going back to the school days. स्कूल डेज की नहीं हो रहा है चीज़ें। आई वॉज नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज माई थिंग्स। मुझे लगा है कि ये इम्पोर्टेंट है पर रियल में दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट थी करने को, सो मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा था चीज़ों को। तो वो वे में काफ़ी कुछ मैं वापस वो जोन में जा रहा था अंदर वाले। फिर वापस मैंने एंट्रेंस दिए, सो आई थॉट कि वापस मैं जॉब करता हूँ। सो मैंने वापस एक रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब किया, सेल्स में ही किया, सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो वहाँ पे थोड़ा बूस्ट मिला, क्योंकि वहाँ पे भी सेल्स था। सो आई थिंक इस टाइम पे आपका ग्राफ ऐसे हो रहा है। हाँ बहुत, आई थिंक एकदम स्टीप, फिर थोड़ा सा हो, फिर वापस स्टीप। तो फिर दिस इज विद एवरीवन, नॉट ओनली यू बट हाँ, बट वो तभी इतना नहीं होता। सो क्योंकि तभी क्या होता है कि तभी द फेज वाज माय ऑल फ्रेंड्स वर डूइंग MBA। मेरा जितने भी ग्रुप के जो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर भी था। हाँ, कि उन लोग ये कर रहे हैं आज। मैं 1 साल के बाद मालूम नहीं क्या करूँगा, बट वो 1 साल के बाद ऑलमोस्ट MBA कंप्लीट करने पाएंगे, दे वुड बी हैविंग अ गुड जॉब इन देयर हैंड, और जो मेरे पास नहीं होगा अभी भी। तो इससे आप आगे कैसे बढ़े? फिर एग्जाम दिए, एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, एंड लास्ट एंट्रेंस दिया और उसके बाद मोदी जी का टीवी पे आया कोरोना का लॉकडाउन। अच्छा 21 डेज वो क्लियर होने के बाद लॉकडाउन आया वैसे। हाँ, मेरा लास्ट एग्जाम था एंट्रेंस का, वो दिया, क्लियर तो नहीं हुआ उसमें। हाँ, बट फिर 21 दिन का फर्स्ट लॉकडाउन आया। Right. वहाँ पे वापस टेंशन में कि सब स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ये बंद, अभी क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वो। एंड अगेन अ शिफ्ट इन द लाइफ। आई थिंक कोविड बहुत सारों के लिए अच्छा भी हुआ है, बहुत के लिए खराब भी हुआ है, बट फॉर मी पर्सनली आई कैन से मेरे करियर बेसिस के लिए आई थिंक कोविड वाज अ गुड 3 months ब्रेक। आई थिंक आई नीडेड इट। सो मैं एक यूथ एक्सचेंज में गया था नॉर्वे। सो वहाँ पे अलग 30 अलग डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं, एंड वी डू अ कल्चरल एक्सचेंज काइंड ऑफ थिंग। सो उनसे मैंने एक चीज सीखी है कि टेकिंग अ ब्रेक इज नॉट बैड एट ऑल। वहां पे लोग 1-1 साल का ब्रेक लेते हैं कि उनको नहीं मालूम आगे क्या करना है। rather than doing anything, let's take a break, analyze yourself and then start. And then struggling, just sit down and हाँ, और हमारे यहाँ पे 1 साल बिगड़ जाएगा, ये नहीं वो करो, उसने वो चालू किया है उसका। we think about the scope कि इंजीनियर बनोगे तो इसका स्कोप ज्यादा है, डॉक्टर बनोगे तो इसका स्कोप ज्यादा है, ये वो। हमारे यहाँ पे ब्रेक लेना मतलब तुम्हारा करियर खत्म। 1 साल का ब्रेक लोगे तुम्हारा करियर खत्म। वहाँ पे वैसा नहीं है। Actually, they respect the fact that. हाँ, एंड मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि आप क्या करो। वी कंप्लीटेड आवर हाई स्कूल एंड वी आर ऑन ब्रेक फॉर एन ईयर। Casually. हाँ, कैजुअली। बोला ब्रेक, आई डोंट नो कि मुझे क्या करना है आगे, सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक। मैं ये साल में आई विल एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड, जो पसंद है मैं आगे करूँगा। सो वो एक चीज मेरे माइंड में बैठा था, बट तभी मुझे नहीं आया। एंड आई थिंक वो ब्रेक मुझे सच्ची में चाहिए था, और कोविड की वजह से वो 3 महीना मुझे जो ब्रेक मिल गया, कंपलसरी ब्रेक मिल गया। सो मैंने लाइफ में इतना पढ़ाई नहीं किया जितना मैंने कोविड में किया था। सो ऐसे ही बैठा था, माय फादर टोल्ड कि सी द वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड, बट इंटरनेट की वजह से वर्ल्ड इज स्टिल रनिंग। सो स्टार्ट सर्चिंग कि आज तूने ग्रेजुएशन किया है मार्केटिंग में, सो मार्केटिंग इज अ वेरी बिग अम्ब्रेला, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। तो यहाँ पे वापस मैंने 11th के टाइम पे जो SWOT एनालिसिस किया था, वो मैंने वापस यहाँ पे चालू किया। हाँ, कि आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन माय स्ट्रेंथ्स, माय वीकनेस एंड एवरीथिंग, और मेरे जो इंटरेस्ट है, सो व्हाट इंटरेस्ट मी टू डू। मैं
कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं मुझे रात को 2 बजे उठा के भी बोलो ये करनी है और मैं करूँगा। पैशन बेसिकली। पैशन। सो फूड शूटिंग है, डायरेक्शन है, डांसिंग है, क्रिएटिविटी है, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है और मैं कभी भी कर सकता हूँ। सो ये सब चीज़ें एक क्लब डाउन और मैं साथ में रिसर्च चालू किया कि इसमें ये ऐसी कौन सी चीज़ें है जिसमें ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ एज अ पार्ट एंड एवरीथिंग। तो फिर आया डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, सोशल मीडिया है, एसईओ है, ये और समथिंग। तो सोशल मीडिया तभी बूम होना चालू हो गया था और कोविड की वजह से ज़्यादा ही बूम हो गया। तो वहाँ पे कैंपेन्स भी है, फोटोग्राफी, ये सब शूटिंग वगैरह सब कुछ करना मिलता है। सो आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर दिस। तो वो टाइम पे बहुत सारी कंपनीज यूडीमी और वो सब ने फ्री कोर्सेज देना चालू किए थे। सो मैंने सब में एनरोल किया एंड स्टार्टेड। ज्ञान मिल रहा था सबसे। हाँ, मैंने रणछोड़ दास चाचड़ का यूज किया था, जिधर से ज्ञान मिल रहा है लो। सो तभी मैं दिन के 7-7 घंटे लैपटॉप में पढ़ाई कर रहा था। मैंने नोट्स बनाया, ये किया, वो किया एंड देन आफ्टर आई थिंक 2 मंथ्स आई केम डाउन के मुझे डिजिटल में आई वांट टू गो अहेड। अभी डिजिटल में भी क्या, तो उसके लिए आई थॉट कि ये सब कोर्सेज में इतना क्लियर नहीं होगा। आई थिंक उसके लिए आई नीड टू गो इनटू प्रॉपर कॉलेज का पढ़ाई और ये सब में जिसमें और मालूम पड़े। सो आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर कॉलेजेस। सो बहुत सारे कॉलेजेस में देखे, कोर्स एनालाइज किया समथिंग एंड लास्टली आई फाउंड के वेलिंगकर का जो पीजी प्रोग्राम है उसमें आई थिंक दैट कवर्स लॉट ऑफ थिंग्स। सो डिजिटल मार्केटिंग, मूवी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, स्क्रिप्टिंग, सब कुछ। हाँ, सो आई एनरोल्ड फॉर दैट कोर्स एंड फिर उसमें मैंने पढ़ाई चालू किया। सो इट वाज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल फिजिकल कॉलेज वाला, बट तभी भी परमिशन नहीं मिले तो मेरा ऑनलाइन ही हो गया। सो हाँ, सो बट आई थिंक मुझे अभी भी वो होता है कि यार वो फिजिकल पढ़ाई होती तो आई थिंक दैट वाज मच फन, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक प्रोजेक्ट्स वर टू मेक अ शॉर्ट फिल्म, स्क्रिप्ट लिखो, स्टोरी बोर्डिंग करो, ये सब चीज़ें अलग मज़ा आता है। एंड फ्रेंड्स, मतलब अभी वो कॉलेज में सब अलग अलग स्टेट्स में, हम लोग ऑनलाइन मिलके ग्रुप बना के हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे, ये कर रहे। आई थिंक सब अगर एक साथ लाइव होते तो वो ज़्यादा मज़ा आता एंड ज़्यादा लर्निंग होता। बट हाँ, तो हम लोग को मूवी और वो सब में सिर्फ प्री प्रोडक्शन का ही करना मिला, शूट तो नहीं कर पाए। यहाँ से आप कहाँ पे जा रहे हो इसके बाद? इसके बाद देन मैंने अब जब ये पढ़ाई कर रहा था, सो अभी अगर मैं बात करूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, मुझे पहले से बिजनेस ही करना था। गुजराती हो तो पहले बिजनेस ही करना था। नहीं, ऐसा नहीं है, बट पहले से मेरे घर पे किसी ने बिजनेस नहीं किया था। They had tried but they were failed. So you wanted to be the first one. हाँ, the rebel. So like मेरा एक ही thinking है कि when you put 200% for a company as an employee and they earn a profit and you get a basic salary, so why not you give 200 to your company and earn the full fruit. So फिर एक फर्म चालू किया and I started developing everything. And then after getting experience और मुझे रेडियो सिटी में काम करने मिला, so for good two years around I worked at Radio City as well. I was there. मुझे धूमकेतु जो इन्फ्लुएंसर नाम मिला वो वहाँ से ही मिला। आपका नाम कर उन लोगों ने किया? हाँ, उन लोगों ने किया। So I featured on their social media page and everything. And फिर लगा कि now it's a good time कि I think मुझे टाइम मिलेगा खुद को एज एंटरप्रेन्योर डेवलप करने के लिए और समथिंग, rather than I wait, I do more job 3-4 साल 5 साल एंड उसके बाद एक चीज़ चालू करूँ। So मेरा एक ही सिंपल लगेगा कि मिस्टेक करूँगा तो खुद के लिए करके मैं वो करूँगा, rather than एक ही प्रोस्पेक्टिव एक ही जॉब से तुम्हें सीखने मिलता है, ऑफकोर्स सीखने मिलता है, बट so once I took a decision कि I will quit the job and I started with my फैमिली से कितना रेजिस्टेंस है? बहुत था कि अच्छा फर्म है, यू आर गेटिंग गुड पेड, क्यों छोड़ना है और थोड़ा टाइम ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, ये ले लो। बट वो चीज़ एक बार दिमाग में बैठ गई, फिर वो किक नहीं आ रहा था। एंड आई टोल्ड के ट्रस्ट मी, गिव मी कुछ टाइम दे दो, आई विल 100% कम अप विद गुड थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो इसमें माय फादर का हाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ नेवर स्टॉप मी डूइंग एनीथिंग एंड उनका एक कॉन्फिडेंस फेस आता है ना कि हाँ तू कर, देन आई एम टोटली बूस्टेड।
सो उन्होंने एक बोल दिया कि यू गो हेड, हाँ, सो resignation डाला and I started with so I think in the Feb this year I started with my firm called The Ray Design. So the ray in that means a light and a positive energy to the design. So basically we deal with graphic designing, video and photography production and website agencies as well. How has the journey been until now? So full of roller coaster. मतलब कुछ दिन बहुत काम है, कुछ दिन कुछ काम है, कुछ दिन बहुत फ्री है. So like अभी I think ढाई तीन 2.5-3 months हुए हैं मुझे स्टार्ट होके, एंड काफ़ी कुछ ये महीनों में मैंने सीखा है, बिकॉज मुझे लगता था कि क्लाइंट मिल जाएंगे मेरे लिए करेंगे ये वो, बट अप्रोच से लेके कंप्लीशन तक का जो फेज है दैट आई एम गेटिंग वेरी मच, कि वो क्लोजर के बाद भी काम क्लोज करके उनसे पेमेंट निकलवाना, ये सब बहुत फेज. एंड व्हेन यू आर अ पर्टिकुलर फेस ऑफ योर ब्रांड, वेयर इनिशियली स्टार्ट में आपका ब्रांड पहचान नहीं होता, यू योरसेल्फ इज द, आपके फेस वैल्यू पे आप पे ट्रस्ट करके वो काम देंगे, एंड आफ्टर दैट ब्रांड एक बनेगा कि हाँ द रे डिजाइन. सो वो एक चीज है वेयर योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ट्रस्ट ऑन यू एंड वो काम देते हैं, तो उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को रीच आउट करना. ऑफ कोर्स इनिशियली आप गलती करोगे, मेरे से भी बहुत गलतियां हुई है काम डिलीवर करने में, बहुत कुछ में, बट आई थिंक आई एम मेकिंग श्योर दैट आई डोंट रिपीट अगेन. एंड बस वही एवरीडे मॉर्निंग उठो, नया दिन प्लान करो कैसे करना है, वापस गोल्स बनाना है कि 1-1.5 साल में क्या न्यू चैलेंज. आई थिंक जॉब में मोनोटोनस हो रहा था, सो कंफर्ट लेवल पे जोन पे था, यहाँ पे नहीं, क्योंकि अभी एज अ गुजराती भाषा में बोले तो जॉब पे आप जब भी होते हो तो यू आर अर्निंग एवरी डे, और आप जब भी जॉब नहीं कर रहे हो और आपका बिजनेस इनिशियल स्टार्ट है तो आप दिन दिन का पैसा तोड़ रहे हो. सो वो कैलकुलेशन होता है कि बेसिक एक दिन में इतना तो मेरा एक कमाई है, तो कुछ दिन डबल हो जाता है, कुछ दिन नहीं होता है. सो वो मेंटली भी थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है कि घर में ये वो, बट आई थिंक मैं हाँ एंजॉय भी कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा आई थिंक वो डायरेक्शन में भी आ रहा हूँ कि वी नीड टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स. मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स आपने पहले बोला कि लोगों के साथ भी होता है, बट वो टाइम पे मैंने अपने हिसाब से सोचा कि मेरे साथ ही हो रहा है. So I started seeing from a different eye अभी, and maturely I'm planning certain things, strategize कर रहा हूँ, and God grace. What's your goal? Next 1.5-2 years में I want my own office with the employees. अभी के लिए तो I'm working from home. I have few people in my team जो hybrid mode पे we meet and everything. Collaborate करके काम कर रहे हो. So I want कि in future the Ray Design should be a single spot for all the creative things. Rather it can be a production, it can be a graphic designing or website. So सबके जुबान पे The Ray Design होना चाहिए. क्या? बोलो जुबान कैसे? Yeah, so वही है कि खुद का ऑफिस, खुद के लिए काम करना, खुद के लिए मेहनत करना, पेरेंट्स के सेक्रीफाइस को एक स्टेज देना कि वहाँ पे उन लोग भी थोड़ा वो, yes, that's nice. Life चाहिए. Definitely, I mean, your story is truly an inspiration, and I'm pretty sure that this video would be seen by many, and hopefully they get inspired, because you know, from a very small age I understand that you have seen troubles and you overcome it yourself, not only once, not only twice, but day in and day out, and today as well you have taken it upon yourself, and as you said that you are the only one जिन्होंने business करने का सोचा in your family, and that's a fantastic thing. और आप खुद अकेले इस रास्ते पे चल रहे हो without knowing the result. This is a sign of great maturity, which I'm very sure many don't have, because कहीं ना कहीं खुद को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कोई जॉब में इजी रहता है, बट आपने you broke each and every barrier and you chose it for yourself that you wanted to go ahead with this, and eventually from whatever we have spoken today, आपने कभी भी किसी को blame नहीं किया इसके लिए. You took it on yourself, and this is something that
inspires me day in and day out. And I've seen this movie Kung Fu Panda जिसमें उसको चुना जाता है as the best warrior. And eventually I understood because he was someone who absorbed all the problems that came upon him. And he was victorious because he never focused on the problem, rather he absorbed all the problems. And this is something that you are doing day in and day out with a smile on your face as well. And ये बहुत कम लोग कर सकते हैं. Trust me, अगर आपकी जगह पे कोई और होता है तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के मारे जूझता रहता है और खुद की लाइफ को कोसता, बट आप हंसी से उसे मुस्कुरा के उसको साइड में करके अपने काम पे फोकस करोगे. Indeed, it's an inspiration. I hope that people today have learned something valuable in their life, and at the age of 24, you are an inspiration to me. Thank you so much. Thank you, Ruchit. It was a great time. Thank you so much.